पतितान पतयो यथा यथा यत्वा विशसन्ति. Sorry, I forgot to chant this. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtikim Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. So 25, text number 25, word to word meaning. ये persons who तो but iha in this life, why indeed Dambikaha, very proud of wealth and prestigious position. Damba Yajneshu, in a sacrifice performed to increase prestige. Pashun, animals. Vishanti, kill. Tan, them. Om Ismin, Loke, in the next word. Visase, Visasa, or Vihasan. Narake, into the hell. Patitan, fallen. Niryan, Patayaha, assistants of Yamaraj. Yata, Itva, causing sufficient pain. Visasanti, kill. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: a person who in this life is proud of his eminent position and who heartlessly sacrifices animals simply for material prestige is put into the hell called Visasan after death. There are assistants of Yamaraja kill him after giving him unlimited pain. Purport. In Bhagavad Gita, chapter 6, text number 41, Krishna says, Suchinam Srimatam Gehe Yoga Brashto Vijayate. Because of his previous connection with Bhakti Yoga, a man is born into a prestigious family of Brahmanas or aristocrats. Having taken such a birth, one should utilize it to perfect Bhakti Yoga. However, due to bad association, one often forgets that his prestigious position has been given to him by the Supreme Personality of Godhead, and he misuses it by performing various kinds of so-called yajnas like Kali Puja or Durga Puja, in which poor animals are sacrificed. How such a person is punished is described herein. The word Damba Yajneshu in this verse is significant. If one violates the Vedic instructions while performing yajna and simply make a show of sacrifice for the purpose of killing animals,
he is punishable after death. In Calcutta, there are many slaughterhouses where animal flesh is sold that has supposedly been offered in sacrifice before the goddess Kali. The Shastras adjoin that one can sacrifice a small goat before the goddess Kali once a month. Now here it is said that one can maintain a slaughterhouse in the name of temple worship and daily kill animals unnecessarily. Those who do so receive the punishment described herein. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Svagadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanditam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanditanscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Diti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshadarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. English हिंदी चलेगा हिंदी होती तो आज का जो श्लोक हम पढ़े हैं वही नर्कलोक के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये अध्याय में पूरा नर्कलोक के बारे में ही वर्णन है। तो आज का श्लोक में कहते हैं कि धाम्बिका धम्बो दर्पाभिमानश्च धम्बो दर्प अभिमानश्च जो अभिमानी व्यक्ति है, धम्ब मतलब प्राउड अहंकारी है। जो अहंकारी और किस लिए अहंकार, इधर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इज प्राउड ऑफ हिज एमिनेंट पोजीशन, उनका जो स्थिति गति के अनुसार उनके पास बहुत बड़ा गाड़ी है, घर है, बहुत संपत्ति है, बहुत ऐश्वर्य है, इससे उत्पन्न हुआ जो गर्व है, वो गर्वित व्यक्ति क्या करता है? वो हेडलेसली सैक्रिफाइस एनिमल्स। इसका मतलब हेडलेस मतलब बुद्धिहीनता। सो बुद्धिहीनता से जानवर को मारता है केवल उनका प्रतिष्ठा के लिए। सो हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठा का कामना से कुछ भी कर बैठते हैं। वो हमेशा टॉप में रहना चाहते हैं, वो किसी दूसरे को टॉप में देखना नहीं चाहता है, हमेशा उनका ही पोजीशन ऊंचा है। उसके लिए कुछ भी करते थे, कुछ भी करना है, कुछ भी कर बैठते हैं। जैसा जानवर का बलि, हमने सुना है कि कोई अभी भी लोग हैं जो उनका पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी जो है उनको भड़काते हैं कि जानवर को बलि दो, बलि चढ़ाओ, आपका वो स्थिति वही सही रहेगा। तो इस प्रकार वो जाके जानवर को मारते हैं, बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को किस प्रकार का नरक मिलेगा, आज का श्लोक में बता रहे हैं कि उनको विषशान बोल के नरक प्राप्ति होगा। और जो यमधर्मराज का जो अनुयायी हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, वो उनको
माने कोई लिमिट नहीं है उसको, जितना बाधा देते हैं उतना दंड देते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। टॉर्चर करते ही रहते हैं। उनको महसूस होता है मैंने क्या पाप कार्य किया और मुझे क्यों इस प्रकार का दंड दिया जा रहा है। तो उनको महसूस जब तक होता है टॉर्चर करते ही रहते हैं। तो ये प्रतिष्ठा जो है ये विष्ठा जैसा है। वैष्णवेर प्रतिष्ठा सुखेर विष्ठा। सुअर का मल के समान है। तो लोग, बहुत सारे लोग जो त्यागी भी है वो कनक कामिनी को त्याग सकते हैं, लेकिन जो ये प्रतिष्ठा का रूप में जो विष्ठा है उसको त्यागना बहुत कठिन है। जब जीवन आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाते हैं फिर भी ये जो ये प्रतिष्ठा का जो भावना है उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। कोई भी कार्य में वो सोचते हैं कि मुझे क्या प्रतिष्ठा, मेरा नाम आएगा या नहीं, मेरा नाम रहेगा तो मैं अच्छी तरह करूँगा उस कार्य को, अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। भक्त का स्वभाव इस तरह रहना चाहिए कि वो केवल भगवान का संतुष्टि के लिए ही कार्य करता है। उनका अपना प्रत्येक रूप से कोई किसी प्रकार का आसक्ति नहीं, उनका नाम आना, इसको सब लोगों को उनका गुणगान गाना, ऐसा कोई विचार नहीं है जो शुद्ध भक्त है। कभी कहते हैं कि भक्त नमक की जैसा है, नमक से तुलना करते हैं भक्तों को, क्योंकि जितने भी पकवान हम बनाते हैं उसमें नमक डालने से उसमें स्वाद आता है। जैसे माता जी उनका रेस्टोरेंट में बड़े समोसा बना रहे, पिज़्ज़ा बना रहे, डोसा बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन उसमें नमक नहीं डालेंगे तो कोई खाते नहीं। तो बोलेंगे कि समोसा बहुत बढ़िया है, कचौरी बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई बोलते हैं कि नमक बढ़िया है। नमक का याद भी किसी को याद आता है, लेकिन नमक की जैसा है भक्त, माने जो भी कार्य करते हैं प्रतिष्ठा का कोई आसक्ति नहीं, और उनका भगवान का कीर्ति, भगवान का गुणगान चाहते हैं, अपना गुणगान नहीं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। सो इसलिए ये प्रतिष्ठा जो है वैष्णवेर प्रतिष्ठा सुखेर विष्ठा, सुअर का विष्ठा के समान है, सुअर का मल का समान है। तो इसको त्यागना बहुत बड़ा साधना है। तो ये मूर्ख बुद्धिहीन व्यक्ति प्रभुपाद जी इधर समझाते हैं कि भगवान का कृपा से, भगवान का अनुग्रह से उनको ये सब उपलब्धि है, बहुत घर है, संपत्ति है, गाड़ी है, ऐश्वर्य है, भगवान का कृपा से ही आपको मिल रहा है। भगवान सबका सोर्स है, तो भगवान का कृपा से ही सब प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सब प्राप्त करने के पश्चात भी वो कभी वो भूल जाते हैं और सोचते हैं कि दम्भोदर्पा भी मानस्य, मेरे हम अमेठी में और मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी मंदिर में सेवा दिया जाता है तो भगवान का सेवा करना यह एक सौभाग्य है। लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिरस्तु, मतलब लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिरस्तु मतलब धन ही नहीं है, भगवान का सेवा का सौभाग्य जो प्राप्त होता है, इसको भी बोलते हैं लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिरस्तु। जैसे लक्ष्मण को धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं और अर्थ का जो प्रतीक है लक्ष्मण, तो जिस प्रकार का संबंध है लक्ष्मण के पास, वो भी श्री रामचंद्र के साथ वनवास में गए और 14 साल श्री राम के संग में ही थे वन में। तो किस प्रकार का संपत्ति है लक्ष्मण के पास, भगवान श्री रामचंद्र का निकट रहते हुए सेवा करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ लक्ष्मण को। इसीलिए लक्ष्मण जो है अर्थ का प्रतीक है। तो लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिरस्तु मतलब केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि भगवान का सेवा करने का
सौभाग्य मिलना। तो भगवान हमको ये वातावरण में रखते हैं, ऐसा स्थिति में जीव को रखते हैं कि वो हमेशा भगवान का सेवा कर सके। इस प्रकार का सुविधा हमको प्राप्त होता है। जैसा देखिए अभी हम ये साउथ वृंदावन में, मेरा माँ बोल रहे कि बहुत कितना भक्त भाग्यवान है वे, मंदिर बीच में है और पूरा आसपास में घर बना के भगवान को केंद्र करते हुए सब भगवान का संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, मंगलारती जपा, साथ में भगवान के लिए फूल अलग अलग जगह पे अलग अलग घर में अच्छा फूल उगाए हैं, फूल तोड़ के भगवान का माला बना रहे। सब लोग भगवान का सेवा में व्यस्त है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये एक फॉर्चून है, अदृष्ट है। सौभाग्य देने के पश्चात भी उस सौभाग्य को जो अपनाते नहीं उसको बोलते हैं मंद भाग्य। भाग्य देने के पश्चात भी भगवान भाग्य स्वीकारने का क्षमता जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं मंद भाग्य। तो इस प्रकार की जो मंद भाग्य है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, having taken shelter of such a birth, one should utilize it in a perfect bhakti yoga, born in a prestigious family of Brahmana aristocrats। तो इस प्रकार का अच्छा जन्म मिला है, अच्छा परिवार में, और सब सुविधा है, धन है, सब कुछ है, सब सुभिक्षा, सब समृद्धि है। तो वन क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति अच्छी तरह भक्ति योग कार्य में पूर्ण तरीका से निमग्न होना चाहिए। एक सुवर्ण अवकाश की जैसा है, लेकिन अवकाश देने के पश्चात भी जो स्वीकार नहीं करते उसको मंद भाग्य बोलते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये इसलिए ड्यू टू बैड एसोसिएशन, बुरा संग से, बुरा संगत से, संजात संज्ञायते काम, जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार का संग है उसी प्रकार का जो भावना है मन से उत्पन्न होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव कौन है? असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। जो असत्संग का जो त्याग किए हैं ये वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है। और भक्तों के संग में रहना, क्योंकि संग में रहेंगे तो शक्ति है। लेकिन इस प्रकार का संग नहीं रहते हुए, बुरा संगति में रहते हुए वो क्या करते हैं? वो भूल जाते हैं। वो क्या भूल जाते हैं? He often forgets that his prestigious position has been given by the Supreme Personality of Godhead, and he misuses it by performing various kinds of so-called yajnas like काली पूजा एंड दुर्गा पूजा। तो इतना अच्छा सुवर्ण अवकाश देने के पश्चात भी बुरा संग से, बुरा संगति से वो भूल जाता है कि भगवान को किस प्रकार का अवसर उन्होंने प्रदान किए, और अलग अलग पाप कार्य में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन बहुत धर्म के नाम पे बहुत पाप कार्य कर रहे हैं। वो उसको बोलते हैं कैतव धर्म। कैतव धर्म मतलब जो अपना मनमानी से सोचते हैं कि यह धर्म है, अपना जो स्वयं सृष्टि किया हुआ धर्म है, इसको बोलते हैं कैतव धर्म। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म। धर्म मतलब भगवान जो नियम दिए हैं वो धर्म सूत्र है। अपना जो सृष्टि किया हुआ धर्म वो धर्म नहीं होता है, उसको कैतव धर्म बोलते हैं। तो अपना धर्म वो खुद क्रिएट करता है और क्या करता है? काली पूजा। काली पूजा करने में कोई गलत नहीं है कि उनके पीछे उद्देश्य जो है वो गलत है। जैसे दामोदर मास के बाद गोपियाँ भी कात्यायनी व्रत किए हैं। क्यों? कात्यायनी व्रत का पीछे का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का उद्देश्य। ऐसा नहीं कि वो महाकाली चंडी भद्रकाली मुझे धनम देही रूपवती भाग्याम देही, ये देही वो देही, देही बोल के ऐसा भौतिक कामनाओं से प्रार्थना नहीं करते हैं। बस भगवान कृष्ण के वैष्णवी जब दूसरा शिव जी या काली माँ का मंदिर जाते हैं तो जितने भी उपदेवता हैं उनको सम्मान देते हैं, उनको सत्कार करते हैं। लेकिन इस प्रकार
भौतिक कामवासना से उनको वो भौतिक इच्छा यत्न नहीं करते। कामैस्तैस्ते कृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामैस्तैस्ते कृतज्ञानों का ज्ञान जब भ्रष्ट हो जाता है तब अन्य देवताओं का उपासना करते हुए उनका जो इच्छा है वो पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जब इस प्रकार का बलि चढ़ाते हैं माँ दुर्गा का पूजा में, तो यमकिंकर जो है, जो असिस्टेंट्स है, यमराज का जो अनुयायी है, वो बहुत कठोर रूप से दंड देते हैं। एक्चुअली यमदूत जो है इतना भारा देते हैं, ये क्रूर नहीं है। एक्चुअली वो यमदूत जो है वो हीरो की समान है। जैसा हम एक सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में हीरो है और एक रौडी को, एक विलन को पिटाई कर रहा है, बहुत मार रहा है। तो जब हम सिनेमा देखते हैं तो विलन क्या किया है, उसने बच्चों को मार दिया, औरत लोगों को मार दिया, दूसरे का संपत्ति लूट रहा है, दूसरे को बहुत पीड़ा दे रहा है। तो जब वो सिनेमा देखते हैं तो हमारा मन में भी उत्पन्न होता है कि कितना बड़ा राक्षस है ये। तो जब उसका पिटाई करता है हीरो, तब हम वो जो मूवी देखते हैं, हमारा भी ब्लड जो है बॉयल होता है, खून फूलता है। हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी जाके उसको एक नाट उसको मिलन वो जो विलन है उस रौडी को हम भी मारेंगे, हम भी एक पंच देंगे उसको, ऐसा लगता है। तो इसी प्रकार एक्चुअली यमदूत जो है वो भीभत्स रूप में है। अगर उनको भी अच्छा मेकअप करेंगे तो वो भी वो सही एक्चुअल रियल हीरोज है, क्योंकि ऐसे प्रकार के लोगों को पिटाई कर रहे हैं। क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है, उनका जो पिछले जन्म का जो हिस्सा है, हम उसको देखेंगे तो बहुत सारा पाप किए हैं। जानवर को मारे हैं, दूसरे के पैसे लूटे हैं, दूसरे लोगों को टार्चर किए हैं, और ऐसे टार्चर नहीं, सैडिस्ट की जैसे टार्चर किए हैं। कभी कभी लोग ऐसा जानवर को आधा मार के छोड़ते हैं। प्रभुपाद जी कथा बताते हैं, जब एक मुर्गी को हाथ या पैर तोड़ते हैं पहले, तो बच्चा रोता है, तो वो आदमी तोड़ते हुए बोलता है कि अरे देखो देखो देखो, और फिर दूसरा एक पैर तोड़ता है तो मुर्गी गिड़गिड़ाता है, तो बच्चा रोता है तो ये हंसता है, क्यों रो रहे, हंसो हंसो, देखो ऐसा ऐसा उसको टॉर्चर करता है। ये सैडिस्टिक है, ये सैडिस्टिक है। तो ऐसे प्रकार के कार्य करने के बाद इस प्रकार का दंड ये देते हैं जो यमदूत है। एक्चुअली ये जो हीरो है उनको भी थोड़ा मेकअप करेंगे तो वास्तव में रूप में से भीभत्स रूप में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हीरो है सब लोग यमकिंकर। तो इस काली पूजा में क्या करते हैं, ये कार्य करते हुए बहुत कर्म लेना पड़ता है। जैसा हम कल सुने थे, राजा भी प्रजा से लूटेंगे, पैसा लूटते हैं। अभी इस जन्म में वो सोचता है कि मैं सबसे पैसा लूट लिया, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन उनका कर्मा भी लेना है। सब प्रजाओं के कर्मा भी लेना पड़ता है प्रजा प्रतिनिधि को। वो उस बात को भूल जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन है कि ये कर्म जो है, ये जन्म जन्मांतर जो हम इस भौतिक संसार के बंधन में फंस गए हैं, ये कर्म के अनुसार, ये कर्म हमको कभी छोड़ता नहीं है। एक अच्छा उदाहरण देते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसा एक बछड़ा है, 1000 गाय भी है, उस 1000 गाय के समूह में भी उसका माँ किधर है वो जाके पहचानता है। बछड़े को छोड़ दीजिए, सीधा चले जाता है माँ के पास। वो ऐसा नहीं कि 1000 गाय है, मेरा माँ किधर है, उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं है। तो 1000 गाय भी होने दीजिए, बछड़ा सीधा माँ के पास ही जाता है। तो इसी प्रकार ये उदाहरण देते हुए उनको समझाते हैं कि ये जो कर्म है, कर्म सिद्धांत जो है, जन्म जन्मांतर हमेशा वो व्यक्ति के पास कैसे भी पहुंच जाता है।
वो शायद अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ, अलग अलग योनि में भी वो भ्रमण करते हुए रहता है, अलग अलग शरीर का धारण भी करते हुए वो अलग अलग जगह पे है, लेकिन कर्म उसका पीछे ही रहता है, हमेशा उनका पीछे ही रहता है। तो ये कर्म बंधन से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त करना है, तो आज का श्लोक में उसका भी उपाय दिए हैं। कभी सोचते हैं कि हम भक्ति बन गए, घंटीमाला पहन लिए, जपमाला पकड़ लिए और भक्ति शुरू किए, तो कर्म छूटता नहीं, छूटता है लेकिन समय लगता है। जैसा उदाहरण देते हैं पंखा का, पंखा जब चालू करते हैं पंखा चलता है, लेकिन उसको जब बंद करते हैं तो फिर भी थोड़ा देर वो चलता ही रहता है। तो इसका इस प्रकार का एग्जाम्पल है कि पाप कार्य में निमग्न होने के बाद वो सब पापों को जब फुल स्टॉप रखते हैं, लेकिन पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उसका थोड़ा प्रभाव रहता है, इसलिए थोड़ा सा पंखा घूमता रहता है उसको बंद करने के पश्चात। लेकिन एक टाइम आ जाता है कि वो पूर्ण तरीके से रुक जाता है। तो इसी प्रकार भक्ति में इस प्रकार का शक्ति है कि पूरा हम कम सर्व पाप है, जो पूरा पाप है वो सब भगवान को उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये शास्त्र भी वर्णन, शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि जंतु बलि कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि काली पूजा अलाउड है, काली पूजा में बकरी का बलि चढ़ाना अलाउड है। तो इस विषय को सुनने के बाद हमारे मन में, स्पेशली भक्तों का मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है कि शास्त्र भी इस प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जंतु का बलि करें। शास्त्र भी 3 प्रकार है, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा, इस संसार में सभी लोग एक प्रकार के नहीं है, कुछ लोग सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। और शास्त्र भी त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य मतलब शास्त्र भी 3 गुणों से परे, 3 गुणों के प्रकार है, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषय वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इस त्रिगुणों से परे होके भक्ति कार्य करो। इस त्रिगुण से परे जो कार्य है वो अकर्म कार्य है। तो त्रैगुण्य विषय निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्फुर, इसमें कोई द्वंद्व नहीं, सुख दुख नहीं, द्वंद्वों से अतीत है। तो इस प्रकार का कार्य ये लेकिन सब लोग ऐसे कार्य में जुड़ते नहीं। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, जैसे अर्जुन जैसे भक्त है वही जुट जाते हैं भक्ति कार्य में, लेकिन सब तो लोग आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक तामसिक पुराण है। तो इस प्रकार के जो ये तामसिक पुराण है उसमें बताया गया है कि बकरी जो बलि चढ़ाते हैं वो भी हमेशा नहीं चढ़ाना है। वो कब चढ़ाना है बलि? अमावास्या के अर्धरात्रि, मिडनाइट, एक पुरोहित को दक्षिणा देके अलग अलग प्रकार के पूजा द्रव्य एकत्र करके और जंगल में जाना है, गांव में भी नहीं बैठ के करना है बलि। बलि घर में नहीं चढ़ाना है, पूरा सुनसान जगह पे जाना है जंगल में, वो भी बीचों बीच रात में जाके अलग अलग मंत्र पढ़ना है। ओम भद्रकाली रुद्रकाली ओम चामुंडेश्वरी ओम स्वाहा, तो ये मंत्र पढ़ के बकरी को बलि चढ़ाना है। तो वो भी बलि चढ़ाते हुए उनका बीच में एक समझौता है। तो किस प्रकार का समझौता है? ये व्यक्ति बोलता है कि मैं अपना जिह्वा चापल्य, अपना जिह्वा का लालसा से मैं उसको नियंत्रण नहीं कर सका हूँ, मुझे मांस खाने का बहुत इच्छा है, तो मैं ये नियंत्रण कर नहीं पा रहा। सो मांसः की मतलब इसका अर्थ है कि माम हिंसः, माम मतलब अभी मेरा इच्छा पूर्ण करने के लिए आपका वध में करके आपका जो मांस है मैं इसको खा रहा हूँ। लेकिन बाद में
अगली बार आपको भी यही प्रकार का मौका मिलेगा कि मेरा भी आप वध कर सकते हो और मेरा भी मांस आप खा सकते हो। तो इस प्रकार का समझौता है। मांसह मतलब यही अर्थ आता है संस्कृत भाषा में। तो इस प्रकार का समझौता करके वो बकरी को मारना है, बकरी को बलि चढ़ाना है। अलग अलग मंत्रों पुरोहित पड़ता है, अलग अलग पूजा द्रव्य खरीदना पड़ता है, पुरोहित को दक्षिणा देना पड़ता है, बकरी या मुर्गी को काटना पड़ता है। तो ये अमावस्या का दिन ही करना चाहिए, महीने में एक दिन, अगर आपको मांस खाने का इच्छा है। तो इस प्रकार का जो तांत्रिक क्रिया है ये करके वो मांस को खाना है, बहुत तामसिक है, लेकिन ये सिस्टम है, वेदों में दिया गया है। अभी ये पूछ सकते हैं सवाल कि वेदों में क्यों इस प्रकार दिया गया है? क्योंकि कैसे भी वो करते हैं। अगर वेदों में जैसे काली पूजा में बकरी को चढ़ाओ अमावस्या के दिन, और चंडी पूजा जब करते हो तो दारू चढ़ा सकते हो। तो कभी अभी भी जो खेड़े गांव है उसमें कोई लोग हैं, अभी भी गांव के लोग ही, शहर के लोग बहुत ज़्यादा है, तो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा परिवार में एक अनवाई थी, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ दुर्गा का प्रसन्नता के लिए गाय को गाय नहीं, बकरी को चढ़ाते हैं, नहीं तो माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होगा तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो यह विचित्र प्रकार का आलोचना उनका मन में है। एक भक्त है, वो भक्त बन गए, लेकिन वो उनका बच्चा भी हुआ, तो सब परिवार के सदस्य बोल रहे कि जाओ जाके माँ दुर्गा को बकरी चढ़ाओ। ऐसा है कि माँ दुर्गा मांस खाने वाली है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महिषासुर का मर्दन उसको, महिषासुर जैसा राक्षस को वध कर रहे, राक्षस का वध कर रहे माँ दुर्गा। ऐसा नहीं कि मांस खा रहे, कभी देखा है माँ दुर्गा मांस खा रहे? हालांकि वो सब प्रकार के जो हड्डी वगैरह माला पहनते हैं जैसा शिवजी पहनते हैं, वो एक्चुअली वैष्णवों का उनका आस्तिक है, वो भी उसको भी भस्म के रूप में धारण करते हैं, क्योंकि वो स्मशान संचारी है। वैसे ही माँ दुर्गा भी महाकाली, लेकिन वो मांस नहीं करते। माँ दुर्गा का अलग अलग प्रकार के नाम हैं, चामुंडेश्वरी, भद्रकाली, रुद्रकाली, महामाया। लेकिन और एक नाम भी है, वैष्णवी। वैष्णवी का मतलब है वो भगवान विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु का बहन है। जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो रहे थे उनसे पहले ही ये बालिका प्रकट हुई, और जब कंस ऐसे वो बालिका को नीचे पत्थर से मारने के लिए सोच रहा तो वो ऊपर आसमान में प्रकट हुआ अष्टभुजाओं से, और बोला हे मूर्ख, तुझे मारने वाला अभी गोकुल में पैदा हुआ है। तो माँ दुर्गा जो है बहन है कृष्ण भगवान का, वही महामाया जो संसार में बंधे हुए माया मोह से उनको दंड दे रही, और वही महामाया योग माया के रूप में, सुभद्रा के रूप में सबको भक्ति में प्रेरणा दे रही, भक्ति में सहकार कर रही। तो इस प्रकार अगर हम योजना करेंगे तो कभी भी दुर्गा मांस का भक्षण नहीं करती है। तो ये मांस जो है जो चढ़ाते हैं, इधर बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, ये कलकत्ता काली, अब तो बंगाल से है बहुत सारे कुछ भक्त लोग, तो कलकत्ता काली को, कलकत्ता काली एक शक्तिपीठ है, उसमें जाने से पहले मंदिर के सामने पूरा रक्तपात है, रक्त से भरा हुआ है। तो उस समय वो बकरी को काटते रहते माँ काली को बोलते हैं काली प्रसाद है, लेकिन अब काली प्रसाद कभी नहीं हो सकता है, वो भूतों का प्रसाद है। क्योंकि जो भूतनाथ है, जब भूतों का जो बाध्यता उन्होंने स्वीकार किया, उसी प्रकार जो माँ काली के पास जो भूतगण है उस मांस को वो खाते हैं, माँ काली नहीं स्वीकार करते। तो एक्चुअली वो काली प्रसाद नहीं होता है, वो भूत प्रसाद है। तो ये जो काली बोल रहे काली प्रसाद बोल के खा रहे हैं, वो एक्चुअल भूतों का प्रसाद खा रहे हैं। तो इस प्रकार ये तामसिक प्रकार के जो कार्य है इसमें निमग्न होते हैं। तो और
दारू पीते हैं। जैसे और क्यों इस प्रकार का ये शास्त्रों में उनको इस प्रकार का नियंत्रण में रखने के लिए सब कुछ दिया गया है, क्योंकि नियंत्रण नहीं है तो कुछ भी कर बैठते हैं। कम से कम एक नियंत्रण है तो कुछ कंट्रोल रहता है। जैसे उदाहरण के लिए दारू पीने वाला है, उसको कितने भी नियंत्रण में रखो वो दारू पीता ही रहता है। तो गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, सरकार का सारा ही दुकान खोलती है, तो सरकार ही खुद खोलता है सारा दारू का दुकान, और उसमें बहुत महंगाई से दारू का वितरण होता है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है दारू खरीदने के लिए, ताकि ये आदमी सोचता है इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा और इतना पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ेगा, तो दारू ही छोड़ देंगे बोल के इस प्रकार का महसूस उनको होना, इसलिए इसको ज़्यादा दाम बढ़ाते हैं सरकार का सारा दुकान। और बहुत सारा काउंसलिंग भी देते। एक बार बोल दिया दारू मत पियो, मांस मत खा लो, तो कोई इतना आसानी से छोड़ते नहीं, वो बहुत बड़ा एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन है। एक बार ऐसा हुआ कि जो दारू पीने वाला है सबको बुलाए शराबी को, अब सब शराबियों को एक जगह बिठा दिया और उनको बोलना कि आज से आप शराब नहीं पीना, तो और उनको प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं कि एक गिलास में शराब, पूरा एक ट्रांसपेरेंट गिलास में पूरा शराब डाल दिया और एक दूसरा गिलास में पूरा अच्छा जूस डाल दिया, तो एक चींटी को पकड़ के वो दारू में डाल दिए, तो चींटी मर गया। दूसरा चींटी लाए और जूस में डाल दिए, तो वो चींटी थोड़ा जूस को पी के जूस में से तैर के बाहर आ गया। तो अब ये शराबी सब के बीच में बैठ के वो सब एक्सपेरिमेंट किया और ये शराबियों से पूछा कि अभी आपको क्या अनुभव हुआ है, किस प्रकार का साक्षात्कार हुआ है आप? तो शराबी एक उठ के देखा, बोला कि देखिए दारू पीने से शरीर में जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाता है, और फ्रूट जूस पीने से कोई बैक्टीरिया मरता नहीं। तो वो बोल रहा है कि दारू पीना अच्छा है। ये लोग समझाना चाहते हैं कि दारू पीने से शरीर में जो जितना लीवर है, किडनी है, उस सब नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, लिवोसिस जैसा भयंकर बीमारी आ जाता है, शरीर पूरा खराब हो जाता है, ये निर्धारण करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ये ऐसा समझा कि शरीर में पूरा बैक्टीरिया मर जाएगा तो दारू पीना अच्छा है, तो इस प्रकार वो समझा नहीं। तो जितने भी समझाएंगे तो समझते नहीं लोग। अभी सिनेमा में देखते स्मोक करो, हीरो स्मोक करे, बी कूल बोल के एडवर्टाइज देते हैं सिगरेट स्मोकिंग के पास। एक प्रकार का तंबाकू पीते हुए कूल कैसे रह सकते, पूरा लंग्स पूरा खराब, धुआं ही धुआं भर के ये तंबाकू का, ये कैसे आदमी प्रसन्न हो सकता है? तो इस प्रकार का ये सब दिखाते हुए लोगों को भड़काते हैं और बोलते हैं कि अच्छा है। कभी कभी ये भी करते हैं जैसा अच्छा खाओ, मांस खाओ, बलिष्ठ बन जाओ। लेकिन बहुत सारे पहलवान है जो मांस बिना खाए हुए भी वो बहुत बड़ा पहलवान है, जैसा दारा सिंह जो हनुमान का पात्र पोषण किए, बहुत तंदुरुस्त, और ट्रेन का इंजन को भी रोक दिया, वो पूर्ण तरीका से वेजिटेरियन था। तो ऐसा नहीं कि ये खाने से शक्ति बढ़ेगा, नहीं। और कभी कभी वो खाने का जिह्वा का जो चापल्य है इतना बलिष्ठ है, जैसा हम हर समय प्रसाद लेते वक्त एक मंत्र का पठन करते हैं, क्या है? शरीरा अविद्या जल जड़ेन्द्रिया ताहे का जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा। ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, अविद्या का जाल है, अज्ञान का जाल है, जाल में फंस गया आत्मा, इसमें बंदी हो गया। और शरीरा अविद्या जल जड़ेन्द्रिया ताहे का, जो जड़ेन्द्रिय है, जो पंच इंद्रिय है, वो बहुत, उसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है।
इधर इधर भागता है, कान, जिह्वा। लेकिन ये सब जड़ेंद्रियों से बहुत नियंत्रण करना बहुत कठिन जो इंद्रिय है वो जिह्वा है। जिह्वा पहले विषय सागर है। जिह्वा पहले जिह्वा आता है। जिह्वा पहले विषय सागर है। तार मध्य जिह्वा आती, लोभमायो दुर्मति, ये सब इंद्रियों का बीच में है ये जिह्वा। हर एक इंद्रिय का एक ही कार्य है, केवल आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन जिह्वा से दो प्रकार का कार्य किया जाता है। जिह्वा से बोलते हैं और जिह्वा से रुचि का आस्वादन करते हैं। दो प्रकार का कार्य है जिह्वा का। तो इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि तार मध्य लोभमायो सुकुलपति, बहुत लोभा है इसको, बहुत लालसा है, बहुत ग्रीड है। लेकिन प्रसाद जब देंगे तो जिह्वा भी नियंत्रण में आ जाएगा। पर जब प्रसाद खाएंगे और भगवान का नाम जपेंगे तो जिह्वा भी नियंत्रण में आ जाएगा। तो इस जिह्वा को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। जब कोई व्यक्ति मांस खाने का उनको आदत पड़ गया तो वो छूटना बहुत मुश्किल है। जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जो गुरु जी थे, वो बर्मा में प्रीचिंग करने के लिए गए थे उनको शिष्यों के साथ। तो जब उन्होंने उधर प्रचार कर रहे थे तो सोचा कि अच्छा फीस्ट बनाएंगे और सबको फीस्ट खिलाएंगे। तो अच्छा शुद्ध गाय का देशी घी मंगवाए और उसमें पूरी बेल रहे थे। तो पूरी और हलवा बना रहे थे घी में, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन उसका जो वासना है, उनका जो स्मेल है, वो सब जगह फैल गया। तो लोग बोल रहे हैं क्या है, क्या बना रहे, इतना गंदा स्मेल आ रहा है। लोग आ रहे हैं सब झगड़ा करने के लिए। तो क्या है, घी में पकवान हो रहा है, पूरी बना रहे, हलवा बना रहे, और ये बोल रहे हैं कितना गंदा स्मेल है। क्या हो गया, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली उनका जीवन शैली जब देखा, वो किस प्रकार का चीज़ खाने का उनका आदत है, लोग क्या क्या खा नहीं जाते हैं पता नहीं है। वो निखल बोलते हैं, निखल। वो एक डब्बा में पूरा मारा हुआ मुर्गी या चूहे या जो तरकारी जो काटते हैं, जो सड़ जाते हैं, वो सड़ा हुआ सब चीज़ उसमें डालते हैं और उसको बंद कर देते हैं और पानी डाल के। और उनका जब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो ढक्कन खोलते हैं और वो पूरा जो सड़ा हुआ जो द्रव्य है, जो बांस आ रहा है, उसको बाहर निकाल के वो शरबत के रूप में आस्वादन करते हैं। अभी देखिए क्या क्या लोग क्या खाते हैं, उनको आदत पड़ गया, जिह्वा का आदत पड़ गया। वो उन लोगों को पूरी और हलवा पसंद नहीं, अच्छा घी में पकवान कर रहे उनको पसंद नहीं। एक बार ऐसे ही चाइना से आए थे एक बार जुहू मंदिर का दर्शन के लिए। तो अच्छा अतिथि देवो भव, अतिथि आए हैं, उनको अच्छा पकवान बनाना बोल के गोविंदा रेस्टोरेंट लेके गए। कौन, अपना एक भक्त। और उस गोविंदा रेस्टोरेंट में बहुत स्वादिष्ट संदेश और रसमलाई बनाए, दूध से मिठाई, और उनको दे रहे थे और वो मुँह में रखते बोल रहा था। तो उनको लोगों को सांप, मेंढक, ये सब खाने का आदत जो लोग हैं, उनको संदेश और रसमलाई देंगे तो उसको कैसे आस्वादन कर सकते हैं। ये सब जिह्वा का जो है, उनको ये खाने का आदत है। कभी कभी लोग जो गर्भाशय में जो पिंड है उसको भी काट के एक जार में रख के अचार की वैसे खाते हैं। टोक्यो में अभी वो इसे भी कर, जो अबॉर्शन किया हुआ जो बच्चे हैं उसको भी काट के खाते हैं। अभी देखिए ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में सब देखना पड़ता है, इसलिए जल्दी भक्ति करके इधर से निकल जाना है, बहुत ज़्यादा देखना नहीं। ये सब सुनने से भी शरीर में कंपन आ जाता है, बहुत भक्ति से नहीं, भाई से। हाँ, तो ये सब वायलेशन है वैदिक इंस्ट्रक्शंस। अभी और कुछ लोग हैं, उनको मांस खाने का इतना इच्छा है कि मांस छोड़ते नहीं। वो बोलते हैं कि कोई गलत नहीं है, भगवान भी मना नहीं करते। ऐसा एक जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने 10 कमेंडमेंट्स में कमेंडमेंट में बताया कि थौ शैल्ट नॉट किल, जीवा हिंसा नहीं करना, साफ साफ बताया गया। हर एक धर्म में, कोई धर्म में हिंसा का प्रेरणा प्रोत्साहन नहीं दे रहे, लेकिन एक धर्म के जो प्रतिनिधि के रूप में जो व्यवहार कर रहे हैं, जो डोंगे लोग हैं, जो चीटर्स हैं, धर्म का सूत्र को बदल देते हैं,
और बोलते हैं कि thou shall not kill, thou shall not murder। मर्डर मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को मार दिया तो उसको मर्डर बोलते हैं, एक आदमी चींटी को मार दिया या मुर्गी को काट दिया तो मर्डर नहीं बोलते, तो कह सकते हैं कोई बात नहीं। तो ऐसा इस प्रकार का एक्सक्यूज देते हैं, इस प्रकार का एक्सक्यूज देते हुए वो पाप में निमग्न होते हैं, बोलते हैं कि कोई नहीं, भगवान कुछ नहीं बोलते, ठीक है हम भक्त है, हम आदर है, ये है, और साथ साथ में ये भी करेंगे, कुछ नहीं, ये गलत है। तो ये पाप जो कार्य करते हैं सबको मैंने बहुत कठोर प्रकार से दंड मिलेगा। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैंने इस जानवर को काटा नहीं, कोई व्यक्ति जंगल में गया जानवर को मारा है, कोई व्यक्ति वो मार्केट में जब आया तो उसको खरीदा है, कोई व्यक्ति जाके उसको घर में खरीद के घर में लाया है, और कोई और व्यक्ति उसको पकाया है और वो मेरा टेबल में है, मैं खाया हूँ, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। जब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, मर्डर करने से पहले जो मर्डर का प्लान बनाता है, मर्डर में जो उपयोग किया वो गन वगैरह सब जो सप्लाई करता है, जो सप्लायर है, और जो मर्डर करता है सबको पनिशमेंट मिलता है बराबर। तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मैं तो मारा नहीं जानवर को, तो मैं केवल मेरा डाइनिंग टेबल पे रखा है, मैं बहुत बोला वाला हूँ, मैं खाया हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो जो मारा है, जो मांस को मार्केट में बेच रहा है, जो मांस को खरीद के लेके आया है, जो मांस को पकाया है और जो खा रहा है, सबको शेयर मिलता है पाप में। तो इस प्रकार ये सब कार्य जो हमको ये जैसा तामसिक पुराण में दिया गया है, बकरी का चढ़ाव, बकरी का ही, गाय का नहीं, वो भी अमावस्या का अर्धरात्रि के दिन, तो उसमें समझौता है कि मैं अभी आपको मार रहा हूँ मेरा जिह्वा लालसा से, बाद में तुम भी मुझे मार सकते हो। तो इस प्रकार का समझौता है। इस प्रकार करते करते आदमी में परिवर्तन आता है कि ये कार्य करना है क्या, मैं भी एक कार्य कर रहा हूँ, ये बहुत पाप है और मुझे भी ये भुगतना पड़ेगा, क्यों इसको छोड़ देंगे, त्याग देंगे बोल के एक बार उसके मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न करने के लिए ये सब कुछ व्यवस्था है। तो आज के श्लोक का जो तात्पर्य है, उसमें श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता से एक श्लोक में समझाते हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इसका मतलब ये है कि ये भक्ति कार्य जब करते हैं इसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता है। पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य लोग जाएंगे, पाप कार्य करेंगे तो पाप लोग में नरक लोग भुगतना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों से ये कर्म बंधन में फंस जाता है, और ये पाप और पुण्यों के से अतीत जो है, जो आध्यात्मिक कार्य है, केवल भगवान को जो संतुष्टि के लिए ही किया गया कार्य जो है, उसमें कोई बंधन नहीं। यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो यज्ञ मतलब भगवान का, यज्ञो वही विष्णु, भगवान विष्णु का संतुष्टि के लिए मात्र ही जो कार्य किया जाता है, भगवान का सेवा, वो जो भी सेवा होना चाहिए, मंदिर सुबह के मंदिर पहुँचना, भगवान का माला बनाना, भगवान का प्रसाद बनाना, भगवान के लिए कुछ भी कार्य, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कुछ भी कार्य करेंगे, उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं। और जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं उसमें हमारा आध्यात्मिक का अकाउंट बढ़ता है। अभी हमारा बैंक बैलेंस का अकाउंट हम देख रहे हैं, पैसा डाल के अकाउंट बढ़ा है, लेकिन ये जो आध्यात्मिक कार्य है हमारा आध्यात्मिक स्वीकृति को बढ़ाता है। और मृत्यु के बाद हमेशा हमारा पास जो संपत्ति, जन्म जन्मांतर हमारा पास जो संपत्ति रहने वाला है वो भगवान का भक्ति, बाकी का सब छूट जाएगा। मृत्यु सर्व हरश्चामी, मृत्यु सब कुछ हर लेती है। अगर बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, स्विस बैंक में इतना सारा धन भी पड़ा है,
कुछ भी नहीं आएगा साथ में। आप जानते हैं सबसे बड़ा डोनर कौन है? जितना भी संपत्ति है वो भगवान का सेवा में उपयोग नहीं करते हुए हमेशा बैंक में उसको भर भर के रखा हुआ है, और कुछ भगवान का सेवा या साधु सेवा में और भगवान का कार्य में उसको उपयोग नहीं कर रहा, तो जाते जाते एक होलसेल में पूरा डोनेशन करके जाता है। बहुत बड़ा डोनर है। तो इस प्रकार ये संपत्ति तो नष्ट हो जाएगा। जितना भी हम अभी सोच रहे हैं कि हम इधर सेटलमेंट हो जाए हमारा अच्छी तरह, तो सेटलमेंट के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, जिधर सेटलमेंट नहीं है उधर सेटलमेंट के लिए प्रयास हो, जितना भी हो। मृत्यु सर्वहरस्य, मृत्यु सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम जो भक्ति करते हैं वो कोई हमसे छीन नहीं सकते हैं। हम जितना भी शरीर में हम भ्रमण करें, जितना भी शरीर त्याग के हम जाएंगे, भक्ति हमारा साथ हमेशा रहता है। इस भक्ति का सुकृति से इस प्रकार का प्रयोजन है। तो ये श्लोक में बताते हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट है, जो अपना आध्यात्मिक पथ पे रहते हुए और पूर्ण नहीं करते हुए भी शरीर त्यागेंगे, तो उसमें कोई नष्ट नहीं है। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी भक्ति कार्य हम करेंगे तो त्रायते महतो भयात्, भयंकर विपत्ति से हम बच सकते हैं। भक्ति कार्य में इतना फायदा है, इतना शक्ति है। अभी हमने भक्ति शुरू की है, इस जन्म में जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे, भगवान का अर्चना सेवा में है, तो अगले जन्म में भगवान और अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। जैसे श्लोक में होता है शुचिनाम। शुचिनाम मतलब, शुचि मतलब जो शुद्ध है ना, शुचि, क्लीननेस, क्लीन, शुद्ध। ब्राह्मण परिवार में जन्म प्राप्त करेंगे। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म प्राप्त करेंगे तो क्या है, पहले से मांस मछली खाने का आदत नहीं है। जो सब ब्राह्मण है वो मांस मछली नहीं खाता है, प्याज लहसुन नहीं खाता है, वो सब ब्राह्मण है। तो उस परिवार में बच्चा में फिर हम पैदा होंगे और फिर शुरू करेगा हमारी भक्ति। बचपन से ही भक्ति शुरू होगा और वातावरण बहुत अनुकूल होगा, भक्ति साधना के लिए बहुत अनुकूल होगा। और श्रीमताम, श्रीमताम मतलब अच्छा संपन्न परिवार में। तो क्या है इसमें फायदा? मेरा पेट पालना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, एक टेंशन नहीं है। बिना टेंशन का जीवन है, सब उपलब्धि है, रेडीमेड, सब रेडी है, रेडीली अवेलेबल है। अच्छा साधना करो, सब भगवान सुविधा दिए है। अच्छा सुंदर घर है, भगवान का मंदिर पास में है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा भाग्यवान है आप सब लोग। अच्छा सेवा करो, अच्छा भक्ति में जुड़ जाओ, बस करते रहो। ये श्रीमताम है, which Aristotle found this. सूचनाम श्रीमताम के योगी वर्ष। अब जो भी जितना भी छोड़ दिया पिछले जन्म में, अभी इस जन्म में और आपको चांस ही चांस, कोई नष्ट, कोई लॉस नहीं है। There is no loss or any diminution in the path of bhakti, no loss at all. Swalpam, even if you do little bit bhakti, it has immense benefit in this. तो यही बताते हैं। तो इस अवसर को प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस अवसर का जो हमको भाग्य मिला है उसको हम अच्छी तरह उसका जानकारी हम प्राप्त करके उसको हम सही ढंग से उपयोग करना है, हमारे जन्म को सफल करना है और परोपकार भी करना है। चैतन्य महाप्रभु सब भारतीयों को एक ही सूचना दी है, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। जन्म सार्थक करो और दूसरों को उपकार करो। उपकार किस प्रकार का उपकार है? जीव जो भगवान से बिछड़ गए हैं उनको भगवान के पास निकट लेके आओ, इस प्रकार का उपकार करो। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
रूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजबालम् यशोदा